Good morning. Welcome back to another class of uh, locomotion and movement. So, this is going to be the last class. Like I told you in the last class, that we will be doing a separate lecture for myopathologies. Okay, so you can, if you are making a list of whatever lectures you want to, so you can add this particular lecture in the when we did muscular system, right? So, the first disease which we'll be talking about is muscular dystrophy. A muscular dystrophy is a genetic disease बेटा. ठीक है. So muscular dystrophy अलग अलग myotonic muscular dystrophy है. Then there is Duchenne's muscular dystrophy है. So myotonic muscular dystrophy is a autosomal dominant disorder. ठीक है. इट्स अ डोमिनेंट डिसऑर्डर. वेर एज ड्यूशन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो आज हम लोग बात करेंगे, दैट इज अ ऑटोजोमल सॉरी माई मिस्टेक, दैट इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. ठीक है. जो मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, दैट इज अ ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, वेर एज द Duchenne's muscular dystrophy is a X-linked recessive disease. Is that right? So the disease which we'll be talking about, दोनों में condition almost similar है. डिस्ट्रोफी नाम बता रहा है मस्क्यूलर मसल्स की डीजेनरेटिव ट्रोफी, मतलब डीजेनरेटिव, डिस रेफर्स टू डीजेनरेटिव चेंजेस ऑफ द मसल्स इज रेफर टू एज मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी. ठीक है. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज ड्यूशेन्स muscular dystrophy, DMD, Duchenne's muscular dystrophy. Okay, so what are the characteristic feature? जैसे मैंने आपको बताया, the characteristic feature is degeneration of the muscles. Degeneration of muscles. This is only called as wasting of muscles. मतलब technically there is no muscle growth. Wasting of muscles. आपको मैंने बताया था कि फिजिकल एक्सरसाइज, बॉडी वेट ट्रेनिंग से, हैवी वेट ट्रेनिंग से आपके मसल्स स्ट्रांग बनते हैं. मतलब मसल स्ट्रांग बनने के लिए मसल फाइबर्स को टूटना पड़ेगा. दे विल हैव टू ब्रेक, एंड व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट योर डाइट विद रिच प्रोटीन supplements, that is when the muscles will grow with double the amount of strength and double the amount of size and durability. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कुछ भी करो, आपके मसल्स जो है मतलब टूटते जाते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस होते जाते हैं, विच रेफर्स टू मसल वेस्टिंग. So one characteristic feature of Duchenne's muscular dystrophy is high creatinine value. ठीक है. हम हाई क्रिएटिनिन वैल्यू को किडनी डिजीज के साथ कोरिलेट करते हैं. ओके, इफ द किडनीज आर नॉन फंक्शनल, दैट इज व्हेन वी अज्यूम और वी कोरिलेट इट with high creatinine diet, high creatinine levels in the blood. But Duchenne's muscular dystrophy में भी creatinine के levels high हो सकते हैं on that particular level. Is that right? The cause is absolutely genetic. मैंने यही बताया था आपको कि एक जेनेटिक है. दिस इज एब्सोल्युटली, इफ द फादर इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, फादर से वो डॉटर को आ सकता है या फिर मदर से वो सन को आ सकता है, बिकॉज दे फॉलो अ क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. सो द कॉज इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. इट इज़ अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. आप इसके बारे में और भी इसमें पढ़ने वाले हो, किसमें, जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हो. ठीक है. इट्स अ एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, मतलब जो जीन फॉर मस्कुलर डिस्ट्रोफी है दैट इज प्रेजेंट ऑन दी एक्स क्रोमोसोम. ठीक है. सो X-linked recessive disease है. again it is a genetic mutation वाला disease, and the mutation of the gene, there is a simple mutation of gene for the production of a important protein, dystrophin. अब डिस्ट्रोफिन एक
एंकरिंग प्रोटीन है विच एंकर्स द मायोफिलामेंट, which anchors the myofilaments, that is thick and thin filament, to the sarcolemma. So in other words, dystrophin is responsible for myofibril, is responsible for myofibril architecture. समझे बेटा, है ना? तो म्यूटेशन is one particular reason, and this gene for dystrophin is present on the X chromosome. ओके, तो ये आपको कॉज समझ गया है. ओके, कॉज यही है बेटा, जेनेटिक कॉज है ना. व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन. ठीक है, मतलब ये इंसान की जीन फॉर डिस्ट्रोफिन खराब रहेगी. ओके, तो डिस्ट्रोफिन ये प्रोटीन जो है ये बनेगा ही नहीं. अगर डिस्ट्रोफिन बनेगा नहीं, दैट लीड्स टू इम्प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ मायोफिलामेंट्स. ठीक है, जो तुम्हारी ट्रांस मेम्ब्रेन या फिर सार्कोलेमा का जो सिग्नलिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना. हमने ये पढ़ा है कौन सा अपना स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी. सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी, सो द मसल मायोफिलामेंट्स दे स्लाइड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. Is that very clear? So when they slide on top of each other, there is a change in the length of the sarcomere. That is also the thing which we already know. Correct? But when there is no dystrophin, there is abnormal dystrophin, yeah, absolutely no dystrophin. So muscle जब contract होंगे तो पूरा का पूरा architecture of that particular muscle is destroyed. Is that right? So a fine contraction या simple contraction may also lead to damage to the entire muscle. ठीक है, so in other words इसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है. ओके, सो फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजी में मैंने आपको बोला था देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन. There is deficiency of dystrophin. Okay, this deficiency of dystrophin will lead to improper transmembrane through the membrane, improper transmembrane signaling during contraction. Improper transmembrane signaling during contraction. ठीक है, अगर ये होगा मैंने आपको बताया, so there will be damage to actin and myosin. कॉमन सेंस है बेटा, चिपकाने वाला प्रोटीन ही नहीं है तो एक्टिन एंड मायोसिन भी अपने इंटीग्रल आर्किटेक्चर में नहीं रहेंगे. सो देयर विल बी डैमेज टू एक्टिन एंड मायोसिन लीडिंग टू wasting of myofilaments and ultimately leading to wasting of muscles. समझे बेटा? ठीक है, सो ये पैथोफिजियोलॉजी है, राइट. नाउ विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स. अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी इतना डेंजरस क्यों है कि ऑटोमेटिकली देयर विल बी पैरालिसिस. एक 12 साल का बच्चा है, 10 साल के बच्चे को तो बिल्कुल उसका मस्कुलर एक्टिविटी एब्सोल्युटली विल बी स्टॉप्ड. वो कुछ भी एक्सरसाइज, आप ये नहीं समझ सकते ना कि एक छोटा बच्चा है जिसके खेलने कूदने की उम्र होते हैं, वो उस स्टेज पे ही इज़ नॉट एबल टू, व्हेन ही सीज अ लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स प्लेइंग एंड ही कैन नॉट डू दैट पर्टिकुलर थिंग. सो दैट इज़ अगेन अ मेंटल ट्रॉमा
ओके। एंड मेजरली इस बच्चे को एक्सट्रीम मसल पेन होने लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। मसल्स वीक होने लगते हैं, बॉडी की पूरी टोनिसिटी, मसल्स की टोन जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है बेटा, ठीक है। तो सिम्टम्स में देयर इज डीजेनरेशन ऑफ मसल्स, कॉमन सेंस अभी अपन ने बात किया, and then there will be this degeneration of muscles might lead to deterioration of girdle muscles, जिसकी वजह से जो मूवेबल फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए। डिटीरियोरेशन ऑफ गर्डल मसल्स, जो बच्चों को ओल्ड एज में आनी चाहिए, ये जो लोगों को ओल्ड एज में आना चाहिए वो उन लोगों को बचपन में ही आ जाता है बेटा, ठीक है। इनएबिलिटी टू वॉक, inability to walk, by the age of 12, ओके। और फिर धीरे धीरे मसल्स, ये तो चलो स्केलेटल मसल्स तो डिस्ट्रॉय हो ही गए, बाद में धीरे धीरे उसके स्मूथ मसल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर कार्डियक मसल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, राइट। सो दे माइट सफ़र फ्रॉम कार्डियोमायोपैथी, डिस्ट्रोफिन तो सब जगह पे होगा ना, कार्डियोमायोपैथी, मेंटल इम्पेयरमेंट लेटर स्टेजेस में, मेंटल इम्पेयरमेंट, एंड लास्टली डेथ at around 20 years, death at around 20 years due to cardiac failure, okay। तो that is all with respect to muscular dystrophy, okay। It is purely a genetic disease, आपको cause याद रखना है, symptoms and all it is just for your extra information, is that very clear? Dystrophy refers to damage to the dystrophin protein. The next disease which we will be talking about, जो NCERT में लिखा हुआ है, that is myasthenia gravis, myasthenia gravis. Myasthenia gravis is a autoimmune disease, is that right? So the major cause of this disease is autoimmunity, it is an autoimmune disease. तो ऑटोइम्यून किसके अगेंस्ट है, कौन से पार्ट के अगेंस्ट, या कौन सा ऑर्गन के अगेंस्ट, या कौन से टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है? सो इन अदर वर्ड्स ऑटो इम्यूनिटी, एंड द ऑटो इम्यूनिटी इज against neuromuscular junction, against neuromuscular junction. सो अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही इन्फ्लेम्ड है बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही इन्फ्लेम्ड है, तो टेक्निकली मसल्स को इम्पल्सेस इजीली जाएंगे ही नहीं। अगर मसल्स को इम्पल्सेस नहीं जाएंगे तो टेक्निकली बोलने का रीज़न ये है बेटा कि मसल्स को अगर इम्पल्सेस नहीं जाएंगे तो मसल्स विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी एफिशिएंटली, इज दैट वेरी क्लियर? ओके। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में देयर विल बी इन्फ्लेमेशन, ओके, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन। All right, so the symptoms of the disease would be the symptoms of the disease will be extreme fatigue, क्योंकि मसल्स को इम्पल्सेस ही नहीं जा पा रहा,
extreme fatigue, okay, paralysis, is that right, and weakening of the muscles. Is that very clear? So ये हो गया तुम्हारा another disease, that is myasthenia gravis. Important feature to remember is here that it is a autoimmune disease. Okay, coming back to the next topic, that is myalgia. Myalgia refers to algia, right? Algia का मतलब है pain. So it is pain to the muscle. So it is muscle pain due to injury. Muscle pain due to, it can be due to injury. That is myalgia. फिर मायोसाइटिस, ये सब बकवास चीज़ें मैं आपको नहीं बताता, ठीक है. एक और कंडीशन है जो हम लोग अभी देखेंगे, दैट इज द फिफ्थ कंडीशन इज मसल स्ट्रेन. मसल स्ट्रेन और मसल स्प्रेन, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है. सो मसल स्ट्रेन वर्सेस मसल पेन, सॉरी, मसल स्ट्रेन वर्सेस मसल स्प्रेन. दीज आर द टू वर्ड्स विच विल बी अंडरस्टैंडिंग. देखो बेटा, यहाँ पे देखो वर्ड समझने के लिए, स्ट्रेन का मतलब क्या है. हम बोलते हैं ना, स्ट्रेन रेफर्स टू स्ट्रेस, है ना, बोलते ज़्यादा स्ट्रेन मत करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. एंड स्प्रेन रेफर्स टू अ स्ट्रेन विद पेन. देखो पी आ रहा है ना, तो पी का मतलब क्या है, पेन. तो यहाँ पे मसल को बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा. हियर द पेन इज़ प्रीटी एविडेंट, वेयर इज़ हियर इट इज़ जस्ट अ स्ट्रेचिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फिजिकल, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आप जिमनास्ट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ एक मोच आ जाती है. तो वो मोच जो है, मतलब इट इज़, देयर इज़ नो वेरी स्ट्रॉन्ग डैमेज. Is that very clear? The damage is not very evident. There is no ligament breakage, there is no tendon का breakage, there is no muscle injury, there is no bleeding internally. तो ये है muscle strain कि थोड़ा सा वो खिंच गया है, पोजिशनल गेट डिफरेंस की वजह से वो थोड़ा सा खिंच गया है. बट मसल स्प्रेन इज एसोसिएटेड विद द डैमेज, देयर इज एन इंजरी एसोसिएटेड, ठीक है. आई विल शो यू व्हाट इज अ मसल स्प्रेन इन, या फिर अ टाइप ऑफ स्प्रेन. सो पहला पॉइंट क्या है, मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा, इट इज़ वेरी सीरियस, राइट. यू डोंट नीड टू सी अ डॉक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन. गर्म पानी, हॉट वाटर बैग रख लो. पहले तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंजरी, पेन हो रही है, तो पहले तो हम पेन को नम करने के लिए वी यूज़ आइस पैक, ठीक है. फिर 3 दिन आइस पैक लेने के बाद देन वी स्टार्ट अप विद दी वार्म वाटर ट्रीटमेंट. सो अल्टीमेटली द एंटायर मोच जो आती है वो ठीक हो जाती है ऑन इट्स ओन. इज दैट राइट? बट वेर एज मसल स्प्रेन इज कंपेरेटिवली मोर सीरियस एंड यू नीड टू सी अ डॉक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन. अगर एक्सीडेंट होती है तो चांसेस ऑफ मसल स्प्रेन ज़्यादा होता है बेटा. वेरी क्लियर. नेक्स्ट इज, इट इज कॉज ड्यू टू स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द जॉइंट्स. ये वाला जो है cause due to, here it is due to stretching, only stretching and twisting of the joints. ओके. अब एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा जिमिंग भी करता है ना, तो उसमें भी मसल स्ट्रेन देखा जा सकता है, बट इट इज़ नॉर्मली ट्रेंड और नॉर्मली फिक्स्ड. अगर एक इंसान को जिम से दर्द हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ नहीं खाता बहुत सारा. इज दैट राइट? वेयर इज हियर इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज़ कॉज ड्यू टू एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग एंड डिसलोकेशन. सो यहाँ पे देयर इज स्ट्रेचिंग इज कंपेरेटिवली ग्रेटर. एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेन ऑन दी जॉइंट्स हुआ है बेटा, बट यहाँ पे एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग एंड डिसलोकेशन. एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग के साथ डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट्स हो गया या बोन्स का डिसलोकेशन हो गया, दैट इज मसल, दैट माइट लीड टू. अब यहाँ पे देखो सब जगह पे जॉइंट्स है, फिर बेटा मसल क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज अल्टीमेटली जॉइंट्स अगर पेन हो रहे हैं, सो द पेन इज नॉट only pertaining to joint, it absolutely spreads on, it is experienced in the muscles also. इसीलिए हम मसल स्प्रेन या मसल स्ट्रेन ये वर्ड्स यूज करते हैं. इज दैट वेरी क्लियर? ओके.
Now what happens is in this thing is there is only stretching of the muscle stretch हो गए, tendon stretch हो गए, but यहाँ पे muscle sprain में there is damage to the muscles and tendons only stretch. Okay, whereas here there is damage to the ligaments, damage to the ligament, there will be ligament tear जिसको हम बोलते हैं, damage to the ligament, there will be damage to the blood vessel leading to bleeding, and also there might be damage to the टेंडन एंड नर्व्स जहाँ पे कंप्लीट इमोबिलाइजेशन चाहिए. यहाँ पे आप मसल स्ट्रेन में आप नॉर्मल ट्रीटमेंट दे सकते हो बेटा, बट मसल स्प्रेन में आपको इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. ओके very clear. And as we said that this is a minor damage which can be treated on its own. This is a major damage leading to immobilization. ओके चलो अपन एक मसल स्प्रेन देख लेते हैं कि कैसा दिखता है वो. ये एक सिंपल मसल स्ट्रेन दिखा रहा हूँ बेटा मैं, जहाँ पे हम बैक पेन की कंप्लेन करते हैं. दिस इज सिर्फ पेन एसोसिएटेड है. देखो यहाँ पे ये टेंडन रीजन में यहाँ पे पेन एसोसिएटेड है. यहाँ पे बैक पेन हो रहा है. तो बैक पेन इज सिंपल मसल स्ट्रेन. इज आर वेरी क्लियर. देखो ओके वैसे ही मसल स्ट्रेन देखते हैं. वो ये हमने देखा मसल स्ट्रेन. ओके मसल स्ट्रेन. Now what we are seeing is muscle sprain leading to ligament or tearing. देखो यहाँ पे पैर के यहाँ पे लिगामेंट टेयर हुआ है. टैलोफिब्यूलर लिगामेंट का टेयरिंग हुआ है एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन, एट दिस पॉइंट, राइट, जिसकी वजह से पैर मूव करना नहीं होगा आपको. और अगर आपने मूव किया तो ये लिगामेंट टेयरिंग और बढ़ जाएगी. देन the ultimate option left with us is surgery. Okay, so this is what you mean by a sprain. तो ये जो पेन होगा ये इस पूरे यहाँ पे जितने भी मसल्स है सारे मसल्स में पेन स्प्रेड हो जाएगा. एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव पेन फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर. ठीक है, आप बिल्कुल पैर रख ही नहीं सकते हो. इज दैट राइट? So that is one example of what we have done. देखो ना ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे. देखो यहाँ पे दिस इज यहाँ पे टेयरिंग दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस काला कलर का मार्क मेरे को दिख नहीं पा रहा, बट आपको यहाँ पे दिख रहा है. देखो टेयरिंग हुई है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, सो दैट इज मसल स्प्रेन. दिख रहा है आपको, एंकल स्प्रेन दिया है बेटा. समझे बेटा? ओके ये सब तो मैंने आपको दिखाया है, मसल बाइंडिंग पढ़ाया है, तो आई डोंट थिंक सो यू नीड टू सी ऑल ऑफ दैट. ओके डजंट मेक एनी सेंस ऑफ टीचिंग दिस सेम टॉपिक वंस अगेन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. सो ये हो गया मेरा मसल स्प्रेन एंड मसल स्ट्रेन. Okay, so the next topic which we
take with respect to this particular chapter is छोटे टॉपिक्स जो बचे हैं, दैट इज मसल ट्विच एंड muscle tetany. What is muscle twitched? Twitch, it is rapid contraction. Rapid contraction. So अगर rapid contraction है, so duration of contraction is very small. जैसे आँख फड़फड़ाना ना, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी स्मॉल. आँख फड़फड़ाना इज अ मसल ट्विच. कभी कभी हाथ ऐसे फड़फड़ाते, दैट इज ऑल्सो मसल ट्विच. स्विमिंग पूल के बाद या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद काइंड ऑफ मसल ट्विच. लाइक फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलाते हो तो रुक जाते हो, उसके बाद अपने को ऐसा लगता है कि आप पैर के अंदर still the muscles are थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है. दैट इज नथिंग बट वेस्ट मसल ट्विच. So duration of contraction is very very small. Okay, what is muscle tetany? Muscle tetany refers to prolonged contraction. So यहाँ पे the duration of contraction, prolonged contraction है. So duration of contraction is great, is long. So muscle tetany is very important because when you are standing, there are several muscles जो contracted state में रहते हैं. When you are sitting also, there is gluteus maximus muscles and gluteus medius muscles which remain in the contracted state when you are sitting, right? So muscle tetany के वजह से आपके most of the daily activities easily चल रहे हैं बेटा. ठीक है. So it's a normal condition, it is not included under pathology. ये दोनों नॉर्मल कंडीशन है. ट्विच को हम स्टेयरकेस फिनोमेना के कंपैरिजन में भी बोल सकते हैं. मैंने जनरली एग्जांपल आपको दिया है कि आप स्विमिंग पूल पिकनिक मनाकर आते हो और घर पे सोते हो, तो ऐसे हमको स्टिल लगता है कि अरे थोड़ा सा बॉडी हिल रहा है, मूव हो रहा है, बट प्रैक्टिकली आप मूव नहीं हो रहे हो, बट आपके मसल्स के अंदर ये छोटी सी वाइब्रेशन एक्सपीरियंस हो रही है बेटा. ठीक है. So that ends with our topic with respect to locomotion and movement. Thank you so much for watching the video. We will be taking up the next chapter, that is